नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज गुजरात पैरामिलिट्री संगठन दाहोद डिस्ट्रिक्ट के राबडाल गांव में हमारे जो आईटीबीपी के जवान उनके परिवार के माध्यम से जो संगठन को पत्र व्यवहार से अवगत कराया, उसके माध्यम से जो पता चला कि यहाँ पर बच्चू भाई, जिनका बेटा आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स आसाम में अभी सेवारत है। जो ये संगठन है वो सेवानिवृत्त शहीद परिवार, किसी कारण से अपनी सेवा छोड़ के आने वाले हमारे जवान और अभी देश की सरहद और आंतरिक सुरक्षा में जो हमारे पैरामिलिट्री के जवान बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आसाम राइफल, ये परिवारों की दुख तकलीफ समस्या के लिए, चाहे वो डिपार्टमेंट लेवल का हो या कोई सोशल हो, उनके लिए संगठन सदैव कार्यरत है। उसी माध्यम से आज संगठन यहाँ दाहोद के राबडाल गांव में आया है और आपको हमारे देश के सभी नागरिकों से नम्र अपील है कि जो एक प्रश्न है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, जो सालों से उनके पुरखों की जो जमीन है, यानी 70-80 साल से जिस जमीन पर वो ये परिवार मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण गुजरान कर रहे हैं, उन परिवारों के साथ 6-8 महीने से एक अनजान शख्स के माध्यम से उनको परेशान किया जा रहा है। उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ है। तो ये क्या है परिस्थिति, हम उन परिवारों के उनके माता पिता से भी मिलते हैं। आइए, खास करके हमारे जवान जो देश की आन बान शान के लिए सरहद की सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं, वो जवान जो आज की डेट में देखा गया है, पाया गया है कि हमारे जवान सुसाइड कर रहे। तो सुसाइड क्यों करते, उनमें भी ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि जो अपने परिवार से चिंतित होने के कारण कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न है, जिसके कारण ये अपना जो आईटीबी का दिवेश भाई है, उनका घर है। अच्छा, जस्ट अगर चलो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। केम છો બેન? જય શ્રી કૃષ્ણ। દિવેશભાઈ નું ઘર છે? હા, દિવેશભાઈ। અચ્છા, એમના આપ માતાજી? માતાજી। એક પત્ર અમને એક ટપાલ આવી હતી સંગઠનને, જેમાં તમારે કોઈ જમીનનો વિવાદ ચાલી રહ્યો છે। જમીન ચાલે છે? હા, જમીન। તમારી જમીન? હા। હા, તમારો એક દીકરો આઈટીબીપી માં છે, એક દીકરો સીઆરપીએફ માં। બચુભાઈ? હા, હું છે। અચ્છા, જય શ્રી કૃષ્ણ। જે માહિતી મળી હતી એ પ્રમાણે બચુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ તરફથી એક કમ્પ્લેન ગઈ છે। લક્ષ્મણભાઈ કોણ છે? અચ્છા, લક્ષ્મણભાઈ બસ તમારા ભાઈ? મોટા ભાઈ? નાના ભાઈ। અને જે હમણાં એક માહિતી જે મળી છે એ પ્રમાણે ખૂબ જ એક જીવલેણ હુમલો થયો હતો। હુમલો થયો ત્યારે મારા છોકરા બહાર અને અંદર આ ઘેરે આવીને મારી ગયા। લોખંડની પાઇપ મારીને પાડી દીધો। હા, લોખંડની પાઇપ? હા, લોખંડની પાઇપ મારીને માથામાં મારીને પાડી દીધો। બસ આવી ગયા। हमारे को घेर को मानस रहता ने માણસ કોઈ નહીં હતા અને લોખંડની પાઇપ મારીને એ લોકોએ પાડી દીધો। घरावर मारी के सागे घरावर मारी के અને છોકરા બહાર, અમારે શું કરવું? અમે પરેશાન થઈ ગયા ડોકરા। અમે પછી કઈ રસ્તો કરવો? એટલે આ તમારી તો આખી જમીન ફાધર મધર સાઈડ બહુ જૂની જમીન, અને આ પ્રશ્ન તો હમણાં જ જે તમે જે ટપાલમાં તમે આવેદન પત્ર આપ્યું અમને સંગઠનો, એમાં જે લખ્યું છે એ પ્રમાણે કોઈ ધીરુભાઈ ને, હા, એ ધીરુભાઈ જે લખ્યું છે તો 55 વર્ષના છે, તો એ પણ જમીન અહીંના જ છે? એના છે પણ એના જે આપણે લાયા હતા, આપણે કાશી લાયા હતા, પણ બાકી કઈ કેમ નહીં લાયા પાછા? ના, 55 વર્ષથી એમનું ઉંમર તમે જે ઉલ્લેખ કર્યો છે, એમની ઉંમર 55 વર્ષ છે, તો 55 વર્ષથી કોઈ વિવાદ નતો થયો અત્યાર સુધી? આ વિવાદ તો તમે જે લખ્યું છે એપ્રિલ મે મહિનામાં થયો છે, અને એકદમ
અચાનક તમારા ઉપર ગાળાગાળી બી થઈ રહી છે ગાળાગાળી ખોટી ખોટી અને ગાળો જે બોલે. બે દીકરા ઉપર જીવલેણ હુમલો થયો એ દીકરા અહીં જ છે હા અહીં જ છે મોટા છોકરાની માં બોલાવો ને એમના દીકરા જશે અનિલની ઉદમ છે એ બધું પછી તમારી જમીન કઈથી આવી પછી એમ તો તમારી આટલા વર્ષ થઈ એ જમીન તમારી કઈથી આવી પછી શેતાનભાઈ તમારો જે એમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે અને અનિલભાઈ તમારો પર પાઇપથી મારવામાં જાન લેવા જે હુમલો થયો એ તમારા ઉપર થયો જીવલેણ હુમલો એટલે આ તો કુદરત સારું છે કે તમે બચી ગયા બસી ગયા હા. અને કેટલા જણના આ માર પડ્યો કેટલા જણ તમે હતા તમે એમના સામે કઈક સામે ના કર્યું કઈક લડાઈ બડાઈ અને ભાઈ એના હાથે કોઈ બચાવવા અચ્છા એ લોકો હથિયાર લઈને આવ્યા હતા યા હથિયાર લઈને અચ્છા આવ્યા. એટલે પ્રી પ્લાનિંગ કરીને જ આવ્યા હતા અને ઓહો અને તમારા ત્રણ દીકરા જે બે સીઆરપીએફ પણ એ અહીં નતા ને નાની હતા. અચ્છા નતા નાની હતા. તો તમારા ઉપર બી થયો તો હુમલો એ તો બહાર હતા નોકરી ઉપર હતા યાર. અચ્છા બચુભાઈ તમે બહાર હતા લક્ષ્મણ તમે બહાર હતા अच्छा अच्छा ओहो नमस्कार નમસ્કાર. आप सभी देख रहे हो ये परिवार जो हमारे है दो हमारे जवान है सीआरपीएफ में जिसमें एक जवान जम्मू कश्मीर में तैनात है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में दूसरा है नीमच में जो छत्तीसगढ़ नक्सलवादी प्रभावित विस्तार में और एक उनका लड़का है बच्चू भाई का जो आसा अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी में तो आप देख सकते हो कि एक सरहद के जवान और आंतरिक सुरक्षा में योगदान देने वाले हमारे दोनों तीनों जवान इन्हीं के परिवार के हैं एक हमारे लक्ष्मण भाई का सीआरपीएफ में लड़का है बच्चू भाई दोनों ही भाई है और संयुक्त परिवार में जॉइंट फैमिली उनका पूरा परिवार यानी आपके परिवार में कितनी संख्या है सर बच्चे सभी मिला के बाળકો બધા મલાઈ એની બે છોકરા અને બે છોકરીઓ. હા અમારે ટોટલ ચાર. અને લગ્ન भी થઈ ગયા છે બધાના હા, થઈ ગયા, થઈ ગયા. हाँ એટલે इतना बड़ा फैमिली जो है उनके परिवार का पालन पोषण जो है इसी खेती वो मजदूरी करके उनका परिवार के बच्चों को पढ़ाना उनका शिक्षा का हो गया उनका मेडिकल का प्रॉब्लम सारा इसी में कर रहे हैं और खास बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे दोनों जवान हैं जो देश की सुरक्षा में इनके दोनों बेटे योगदान दे रहे हैं वहां तक ये बात पहुंचने पर जो अभी मैं बात बताया कि सुसाइड का जो केस आज की टाइम में जो जवानों के साथ हो रहा है उसमें ये भी एक प्रमुख कारण है तो ये सब के कारण वहां जवान देश सेवा के साथ साथ दुश्मनों के सामने तो हमारा जवान बहुत ही निडरता से हिम्मत से लड़ते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हारते हैं हताश होते हैं उनका मोरल डाउन होता है वो ड्यूटी में तो बेशक है लेकिन उनका पूरा ध्यान उनके परिवार की दुख तकलीफ समस्या है तो ये उनकी समस्या वो तो देश के लिए सरहद और आंतरिक सुरक्षा अपना योगदान दे रहे हैं तो ये फर्ज किसकी है हमारे नागरिकों की और विशेष करके मेरे को माननीय हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी साहब जिनकी दीपावली होली सारे त्योहार हमारे जवानों के बीच में ही बिताते हैं अभी जो ये दिवाली गई वो हमारे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात की बॉर्डर पे हमारे माननीय यशस्वी आए थे उसके पहले पिछले साल उन्होंने आईटीबीपी के जवानों पैरामिलिट्री के जवानों के बीच में अपनी दिवाली होली मनाई थी और खास करके गुजरात की जो हमारी आज की सरकार है नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है जो जवानों के प्रति संवेदनशील सहानुभूति उनके साथ वो जवानों के जो भी प्रश्न है उसको हल करते मैं यहाँ पर सरकार को खास विनती प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे दोनों तीनों जवान है जो देश की सुरक्षा में और उनका परिवार यहाँ पर खास बड़ी बात जो है सामने आई है कि ये परिवार जमीन जो है बेशक उनके पुरखों की है लेकिन वो खुद आज के टाइम में आज के जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो भी सरकार की लॉ एंड ऑर्डर है कायदा व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि जो भी जमीन का मापदंड जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग किया जाए वो इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते लेकिन मैं यहाँ पर खास कहूंगा उनके परिवार के सामने जो जानलेवा हमला हुआ है उस पर सख्त जिस बंदे ने किया है कायदा कानून तौर पर ऐसे नराधमों के साथ बहुत कड़क कार्रवाई होनी चाहिए उनको जेल के सलाखों के पीछे धकेल देना चाहिए मैं खास करके हमारे गृह मंत्री साहब को भी विनती करता हूं हर्ष संघवी साहब को और हमारे मुख्यमंत्री साहब को कि सर ये परिवार यहाँ पर है उनके लड़के तीन लड़के देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं वो परेशान ना हो वो जवान परेशान ना हो इसलिए ये जो मुद्दा है उसको गंभीरता से लिया जाए और इस परिवार को न्याय दिला जाए इसके लिए मैं बार बार अपील कर रहा हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री और गुजरात के खास करके
मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब को खास विनती करता हूं, जो ये जमीन का मसला है, मुद्दा है, और ये हमारे पैरामिलिट्री परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, तो पैरामिलिट्री जवान अपना शांतिमय रीते तौर पे वहां पर ड्यूटी कर सके, उनको परेशानी ना हो, वो चिंता मुक्त रहे, तनाव मुक्त रहे। इसके लिए इस मुद्दे को और अलग तरीके से देखते हुए जल्द से जल्द जितना भी फास्ट हो इसका निवारण हो और इनको न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।